Hello, students. Today we will continue in the second part of the lesson, Landscape of the Soul, written by Nathalie Teraude. So we have completed the point till here that there is difference between two types of art. One is from Europe and one from Asia, especially of Chinese. So we have discussed two stories. A story related to an emperor who ordered to make a painting that was called a landscape that belonged to China, in which the painter entered in the painting by opening the entrance of a cave, and he never was seen again. Just he disappeared from the painting, and also painting was also disappeared. So the astonished emperor was standing there and he couldn't speak a single word. So that was the first story. The second story was of Europe, in which a blacksmith who fall in the love of a girl of a painter, and because the master painter, he was not allowing him to marry with a person who was in the profession of blacksmith. So by entering in the studio of the painter, this blacksmith make a fly in with such religion that this painter was also confused, and he tried to sweat it away. And when he couldn't sweat it, he recognized that it was only a painting. And when he came to know that the painting was made by blacksmith, he admitted him as an apprentice to his studio and also married his daughter to the blacksmith. So this was the second story. So these two stories were compared by Nathalie Trevery in this lesson, Landscape of Soul. So we were at this point. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. So it is given that the first story, that is related to China, that want to achieve the essence of inner life and spirit in Asia. जो एशिया की जो पेंटिंग है, चाइना की पेंटिंग है, दैट इज़ रिलेटेड टू द लैंडस्केप ऑफ द सोल, दैट टेल्स द इसेंस ऑफ इनर लाइफ की इनर लाइफ की क्या ज़रूरत है, एंड स्पिरिट, और स्पिरिट की क्या महत्व है, सोल की क्या महत्व है, दैट इज़ टेलिंग, दैट वाज टोल्ड इन थ्रू दिस आर्ट. एंड द सेकेंड वन that is related to blacksmith, that tells illusionistic likeness in Europe. यूरोप के अंदर किस प्रकार से illusions को लाइक किया जाता है, भ्रम में डालने वाली जो पेंटिंग्स हैं उनको कैसे लाइक किया जाता है. सो वी विल कंटिन्यू विद दिस पैराग्राफ. इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस. की जो चाइनीज स्टोरी थी उसमें एम्परर ने कमीशन किया, ऑर्डर किया एक पेंटिंग को, and he appreciates its outer appearance like forest, mountains and hilly paths, people moving. So all these things were appreciated or praised by the emperor. Emperor ने उन सभी चीज़ों को appreciate किया, but the artist reveals to him, लेकिन artist जो था जिसने पेंटिंग बनाई थी, he reveals to him the true meaning of his work. उसने उसको true meaning बताया, that what is the true meaning, that how to get free from this earth by entering in this painting, because the final aim of the person is only to get free or to go in heaven from the earth. So this type of meanings that is given by the sons and Mahatmas. So he also tell the real meaning or the true meaning of his work, that how to get free from this materialistic world. द एम्प्रर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड. उसने बताया कि एम्प्रर यू कैन रूल ओवर ऑल द टेरिटरी और द रीजन यू हैव वॉन, यू हैव कॉन्कर्ड, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन. लेकिन जो आर्टिस्ट है ही ओनली नो द वे विद इन, वट एवर द पेंटिंग्स, द केव्स, माउंटेन्स ही हैड मेड, ही नो द वे विद इन. कि अंदर का रास्ता केवल पेंटर को ही पता है, बिकॉज इफ़ ही हैड मेड सच ए पेंटिंग रिलेटेड टू फॉरेस्ट, ग्रीनरी,
and mountains or the caves or anyway he know everything, but that emperor only know how to rule over his territory. Let me show the way. The Dao, वो दाओ जी, he had said that let me show the way, कि मैं रास्ता दिखाता हूँ. A word that means both the path or the method, कि ये एक ऐसा वर्ड था, let me show the way, these are the words they were telling both the path, दोनों चीज़ें, one is path and another is the method. मैं आपको एक तो रास्ता दिखाता हूँ. उसने कहा था कि let me show the path, show the way. वे का मतलब यहाँ पर दो मीनिंग है कि एक तो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ हाउ टू गो इनसाइड, द सेकंड वन इज़ द मेथड, कि वो तरीका बताता हूँ मैं आपको by which one can get free from this materialistic world. And the mysterious works of the universe, कि वो मेथड या फिर और दूसरी जो मिस्टीरियस वर्क्स हैं यूनिवर्स के, वो मैं आपको दिखाता हूँ जो रहस्यमयी चीज़ें हैं. लाइक वन कैन इवन एंटर इन ए कैव वेयर ड्वेल्स अ स्पिरिट. द पेंटिंग इज गोन, पेंटिंग आज के दिन जा चुकी है, दैट इज डिसअपियर्ड, बट द आर्टिस्ट हैज़ रिच्ड हिज गोल. लेकिन आर्टिस्ट भी अपने गोल पे पहुंच गया है. हिज गोल वाज टू गो फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दैट इज बियॉन्ड एनी material appearance. He is beyond the any type of materialistic appearance. Next, now once again the difference has been shown between the two things, that is Chinese art and the European art. A classical landscape is not meant to reproduce an actual view. कि जो classical Chinese landscape है, painting है, it doesn't mean to reproduce an actual view. इसका मतलब ये नहीं कि वो actual view दिखाना चाहता है. मतलब जैसे उसने painting बना दी, जैसे कि यूरोपियन के अंदर उसने फ्लाई बनाई है, दैट शुड बी सीन एज ही हैज़ मेड, बट द चाइनीज लैंडस्केप हैज़ अनदर मीनिंग, एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग. जैसे कि एक वेस्टर्न के अंदर जो फिगरेटिव पेंटिंग है, दैट इज़ मेटाफोरिकल पेंटिंग है, प्रतीकात्मक है, कि जैसे उसने बना दी, सो लाइक फ्लाई, सो यू विल हैव टू कंपेयर इट विद फ्लाई दैट इट्स रियल लाइक and you can admire it. But the Chinese art is totally different. It doesn't mean to reproduce an actual view. Whereas the European painter wants you to borrow his eyes. जो यूरोपियन पेंटर है, he wants that you should borrow his eyes, you should see from his eyes, because as the blacksmith has made a fly, blacksmith ने एक fly बना दी, and the blacksmith who had made a fly, and the master painter couldn't recognize it, he was in illusion, he was confused, वो भी एकदम से भ्रम में पड़ गया कि ये रियल है कि नहीं. सो द यूरोपियन पेंटिंग वांट्स दैट यू शुड बोरो द आइज ऑफ द पेंटर. जिसने पेंटिंग बनाई है उसकी आंखों उधार ले, आप उसकी आंखों से देखें कि व्हाट इज इट. सो द यूरोपियन पेंटर वांट्स टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट अ पार्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही साइड, जैसे वो इसको देखता है, जैसे उसने फ्लाई बनी है, वैसे ही आपको उसको देखना है फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल. द चाइनीज पेंटर, लेकिन चाइनीज पेंटर डिफरेंस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर वेयर द डिफरेंस बिटवीन द चाइनीज एंड यूरोपियन पेंटिंग हैज़ बीन शोन. द क्वेश्चन इज यूजुअली आस्क्ड that what is the difference between the Chinese art and the European art. So the Chinese painter does not choose a single viewpoint. Chinese painter वो एक single viewpoint नहीं दिखाएगी, उसने केवल forest को देख लिया, आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, you can admire the forest or the landscape or the hilly paths or the mountains or the clouds or the birds. He has so many paintings, and if you want to understand them, you will have to enter in it. It means spiritually. His landscape is not a real one, कि इसकी जो landscape है वो real one नहीं है, केवल आप उसको देख करके भ्रमित हो जाए. And you can enter it from any point, आप कहीं से भी इसके अंदर enter कर सकते हैं. It means only you will have to enter it spiritually. आप इसके अंदर खो जाएंगे, then you can recognize it, then travel in it, कि आप कहीं से भी एंटर कर जाएं और इसके अंदर ट्रैवल करें वन बाय वन, once forest, once mountains, once cave, and everything you can enter, you can travel. The artist creates a path for your eyes, कि आर्टिस्ट आपकी आइज़ के लिए एक पाथ बनाता है, एक रास्ता बनाता है. एज Wu Daoji also said that let me show the path to travel up and down, because king could not understand what he want to say, because he could have only the strength to rule over the territory, but only the artist know how to reach the real goal.
So his landscape is not a real one, and you can enter it from any point, then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again. It means you can travel up and down, and also you can come back. But it doesn't mean you will have to enter spiritually, mentally, physically, every aspect of your life in a leisurely moment. It means in your leisurely moment, when you are having a relaxed moment, at that time you can even come back from it. मतलब आप रिलैक्स करना चाहते हैं स्पिरिचुअली, इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहते हैं, एंड देन यू कैन ऑल्सो रिटर्न. दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रोल, कि अगर आप हॉरिजेंटल स्क्रोल को ले, like just I'm just moving the pages horizontally of a notebook or of a book, कि बुक के जो पेज हैं उनको अगर मैं हॉरिजेंटली स्क्रॉल कर रहा हूँ, उससे आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, देन रोलिंग इट अप टू द मूव टू द अनदर. जैसे आप पेज खोलते हैं बुक के, इन दैट वे once just one section of the painting, then other, it means once one page, then second page, then third page. So it adds a dimension of a time which is unknown in any other form of painting, or and it also takes dimension of time, कि time का dimension लेता है, पता नहीं कितना time ले लेगा, it is unknown, and that is totally different, which is unknown in any other form of painting. किसी भी painting के अंदर unknown है. That when you have entered spiritually in the painting, you can admire it, you can understand every part of the painting, and it could take a lot of time. It also requires the active participation of the viewer, and it also requires active participation. It means you can't only just watching and you can admire, कि आप देख रहे हैं केवल admire कर रहे हैं. It means it requires your active participation, mentally, physically, every aspect. Who decides at what place he will travel through the painting, and जो भी active participation करेगा, he will decides that what पेस ही विल ट्रेवल, किस स्पीड से वो ट्रैवल करेगा इसके अंदर थ्रू द पेंटिंग. ए पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, कि आपका पार्टिसिपेशन है फिजिकली भी होना चाहिए, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी. द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज. जैसे यूरोपियन पेंटर है, वो अपने आइज बोरो करने के लिए कहता है, चाइनीज पेंटर कभी नहीं कहता है. ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहता है कि आप उसके माइंड के अंदर ही एंटर कर जाए. जब जो पेंटर है वो कह रहा था कि यू शुड I show you path, it means the king should have entered in his mind so that he could also see what was there. So the landscape is an inner one. तो आप ये समझ गए होंगे, जो लैंडस्केप है, चाइनीज़ लैंडस्केप है या चाइनीज़ जो पेंटिंग है, वो एक प्रकार से इनर वन है, अ स्पिरिचुअल है वो, एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, और एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, आइडियाज़ के ऊपर है कि वो आइडिया आप समझ पाते हैं कि नहीं है. सो द लैंडस्केप इज इनर वन, कि वो आंतरिक है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, और कॉन्सेप्चुअल है, आपके आइडियाज़ के ऊपर है कि कैन यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. कम टू द नेक्स्ट. दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, कि इस कॉन्सेप्ट को हम सेंसुई से समझ सकते हैं. सेंसुई को अगर हम समझेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. व्हाट इज सेंसुई? समटाइम ए क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट इज सेंसुई? कंपेयर इट विद द चाइनीज आर्ट, कि इसको चाइनीज आर्ट के साथ आप कंपेयर करके बताइए. सो सेंसुई लिटरली मीन्स माउंटेन वाटर. सेंसुई का जो लिटरली मन है, शाब्दिक जो अर्थ है वो, दैट इज माउंटेन वाटर विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जो कि एक प्रकार से लैंडस्केप वर्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. इट मीन्स लैंडस्केप वर्ड है, दैट इज सेंसुई, एंड सेंसुई मीन्स माउंटेन वाटर. और डायरेक्टली यू कैन से लैंडस्केप मीन्स माउंटेन वाटर. So how it has been explained, more than two elements of an image, these represent two complementary poles, कि किसी भी एलिमेंट की जो इमेज है, मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, कि एक इमेज है उसके दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है दिस माउंटेन वाटर. एंड दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स. जो माउंटेन वाटर है ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है. हाउ? Mountain that is totally straight, and water that is vertical. This is, you can say, mountain, and this is, you can say, water. So this is vertical, बिल्कुल सीधा है, and this is horizontal. You can imagine. So two complementary poles
कि ये दो कॉम्प्लीमेंट्री जो अपोजिट पोल्स हैं उनको बता रहा है, रिफ्लेक्टिंग द डावेस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, कि जो डाओ है वो दाओ जी है उसका जो आस्पेक्ट है यूनिवर्स का उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। द माउंटेन इज यंग, माउंटेन को यंग बोला गया है जो कि बिल्कुल सीधा है, दैट इज यंग, दैट हैज़ बीन नेम्ड ऑल्सो यंग। रीचिंग वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन, जो वर्टिकली हेवंस की तरफ जा रहा है। स्टेबल एंड वार्म, बिल्कुल स्टेबल है, वार्म है, ड्राई है इन द सन, की सन की तरफ बिल्कुल ड्राई भी है, वार्म भी है, मीन्स द करेक्टर्स ऑफ द माउंटेन। वाइल द वाटर इज यिन, जबकि वाटर है वो क्या है, हॉरिजेंटल है, उसको नाम यिन का दिया गया है, इसको नाम यंग का दिया गया है, दैट इज हॉरिजेंटल। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो अर्थ के ऊपर रेस्ट कर रहा है, फ्लूइड के अंदर है, मॉइस्ट है, लिक्विड है, मॉइस्टी है, नमी वाला है, एंड ऑल्सो कूल, ये हॉट है, ड्राई है, वार्म, ड्राई in the sun, stable also, it is in liquid form, moisty, it means both are opposite to each other, they are complementary poles, पूरक हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। द इंट्रैक्शन ऑफ द यिन, द रिसेप्टिव फेमिनिन, अब जो यिन है यानी कि वाटर है उसको फेमिनिन एस्पेक्ट बताया गया है, उसको फीमेल बताया गया है, फीमेल एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी का बताया गया है। सो द इंट्रैक्शन, when there is interaction take place, exchanges take place between the two, that is masculine and also feminine, and its counterpart young, और इसका जो counterpart है, इसका जो opposite part है, that is young, और you can say mountain। इन दोनों का जब exchange होता है, active and masculine, जो कि active भी है और masculine है, is of course a fundamental notion of Taoism, और यही एक फंडामेंटल, एक बेसिक नोशन है, आइडिया है डाओइज्म का, दैट देयर इज ऑल्सो एक्सचेंजेस बिटवीन द यंग एंड यिन, और माउंटेन एंड वाटर, और द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड पार्ट, कि नॉर्मली हमने ये बता दिया कि दैट इज मैस्कुलिन, दैट इज फेमिनिन, बट वेयर द इंट्रैक्शन टेक प्लेस, वेयर द एक्सचेंजेस टेक प्लेस, दैट is very important point। sometime its question is asked that what is middle void, that is called middle void, इसी को बोला गया है middle void। what is middle void? so where the interaction take place, what is open overlooked is essential third element, ये third element है जो कि essential है, the middle void where their interaction take place, जहाँ पर interaction होता है। this can be compared with the yogic practice, और कई बार ये पूछ लिया जाता है टू विच द मिडल वाइड इज़ कंपेयर्ड विद, मिडल वाइड को किसके साथ कंपेयर किया गया है। सो मिडल वाइड इज़ कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। दोज हु आर वॉचिंग द प्राणायाम फ्रॉम रामदेव, दे कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड दे कैन ऑल्सो डू दिस प्राणायाम। सो इन प्राणायाम व्हाट हैपन्स, ब्रीद इन, प्राणायाम के अंदर आप क्या करते हैं, ब्रीदिंग लेते हैं, सांस पहले अंदर लेते हैं, रिटेन इट, आप उसको रोकते हैं, एंड ब्रीद आउट, और उसके बाद सांस को छोड़ देते हैं। एंड द सस्पेंसन ऑफ ब्रीद इज वाइड, कि जो सस्पेंसन है ब्रीद का, सांस को रोकने का, जो रिटेन करने का जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड द वाइड, इसी को वाइड बोला गया है, इसी को मिडल वाइड बोला गया है। सो द इंट्रैक्शन बिटवीन द यंग एंड यिन, वेयर द सस्पेंशन टेक प्लेस, वेयर द इंट्रैक्शन टेक प्लेस, दैट इज मिडल वाइड। द मिडल वाइड इज एसेंशियल, कि मिडल वाइड है, दैट इज essential। so breathe, the suspension of the breath is the void where meditation occurs, जहाँ पर meditation होता है, यही वो जगह है जहाँ पर meditation होता है, जहाँ ध्यान केंद्रित होता है। so you can compare the mountain water or the sansui or the landscape with the help of the pranayam, because the poet because the writer, that is Nathalie Trauris, she wants to tell that if you want to understand the classical Chinese painting, you must have also meditation। आपका मेडिटेशन होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान केंद्रित होगा, तभी आपको लैंडस्केप समझ में आएगी, अदरवाइज यू कैन ओनली प्रेज इट, यू कांट अंडरस्टैंड इट। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, की जो मिडल वॉइड है जहाँ मेडिटेशन होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, कि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। इन द सेम वे इन द लैंडस्केप द अनपेंटेड वाइट स्पेस, जो शुरू में एक पेंटर है, एक वाइट आप कह सकते हैं सफ़ेदी करता है, वाइट पेंट करता है बिफोर हिज क्रिएटिविटीज़, बिफोर मेकिंग ट्रीज और माउंटेन्स और एनीथिंग एल्स। सो दिस वाइट पार्ट इज एक्चुअली द मिडल वाइट, दैट इज द मिडल वाइट। सो hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape is also like the middle white।
दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स फंडामेंटल रोल, कि ये भी है, दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स फंडामेंटल रोल, जहाँ पर जो मैन है वो भी एक फंडामेंटल अपना रोल अदा करता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, की जो हेवन है दैट इज़ माउंटेन, अर्थ दैट इज़ वाटर, उनके बीच का जो इंट्रैक्शन पार्ट है वहाँ पर ही बिकम्स द कंडेट ऑफ द कम्युनिकेशन, वो एक प्रकार से कंडेट बन जाता है। कंडेट मीन्स चैनल और द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कि दोनों का जो इंट्रैक्शन है, जो कन्वर्सेशन है, जो कम्युनिकेशन है, उनको अगर कोई चलाता है दैट इज़ मैन। बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के जो बोथ पोल्स हैं दैट इज़ हेवन एंड द अर्थ, हियर इज़ अर्थ एंड देयर इज़ हेवन, इन दोनों के बीच की जो दैट इज़ रोल है दैट इज़ डन बाय मेल्स। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, कि उसकी प्रेजेंस है दैट इज इसेंशियल इवन इफ इट इज़ ओनली सजेस्टिंग, चाहे वो सजेशन के रूप में हो बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पिक्स, कि जो फार है, हालांकि जो मेल है, मैन है दैट इज़ ऑन अर्थ, दैट इज़ फार फ्रॉम द लॉफ्टी पिक्स, जो शिखर वाली जो ऊंची जो पिक्स हैं, चोटियाँ हैं, उनसे कहीं दूर है। ही इज़ इवन देन ही इज़ द आई ऑफ द लैंडस्केप, लेकिन उसके बावजूद भी जो लैंडस्केप की जो आई है, जो इम्पोर्टेंस है, वो मैन है और द पेंटर है, जिसने इस लैंडस्केप का निर्माण किया है, और वही इसके बारे में आपको बता सकता है कि दैट वेयर इज व्हाट इज इन द वर्ड्स ऑफ फ्रेंकियोस चेंगाज वंडरफुल एक्सप्रेशन। फ्रेंकियोस चेंग्स ने अपने वंडरफुल एक्सप्रेशन में कहा है कि मैन इज़ द आई ऑफ द लैंडस्केप, कि मैन है वो लैंडस्केप की आई है, और यहाँ पर मैन है वो पेंटर है, दोज हु कैन अंडरस्टैंड वेल द लैंडस्केप ऑफ सोल। सो इट इज़ नेवर ईजी टू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप ऑफ सोल, and actually this landscape soul is accept or the part from the ethics and spirituality in Chinese painting, slightly edit, that's another thing, थोड़ा सा एडिट किया गया है, लेकिन ये इस लैंडस्केप ऑफ सोल एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग से ये पार्ट लिया गया है जो आपके सिलेबस के अंदर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट।